Okay, students, today we are going to find out the problems, the solution of the problems, application of integrals. The question is here: find the area bounded by the curve y is equal to x cube, x axis and the lines x equal to 2 and x equal to 4. तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स है इसको सोल्व करने के लिए आपको सबसे पहले रफ स्केच बनाना चाहिए. रफ स्केच. First of all, you find out the rough diagram of this problem. Y is equal to x cube. Y is equal to x cube. And the lines are x equal to 2 and x equal to 4. Now the graph of this one is, you find out a table for this one from 2 to 4. 2, 3, 4. Up to 4 ले लीजिए only. 2 to 4. And this is here 8, 27, 64. Now you draw the rough sketch. This is here 1, 2, 3 and 4, and this one is here 16, 32, 48 and 64. Because when x equal to 2, as you get 8, 3, 27, nearly, well, this is just a rough sketch for 64. So you get this type of curve, and this is starting with 2 and with 4, and you find out the area of this region. Okay, now the required region is here. Required region, required area is equals to, we started with 2, देखिए up to 4, x equal to 2 to 4. What do you mean by this one? X equal to 2, x equal to 2, this line up to 4, this line, y dx, y this curve dx with respect to x axis. ओके, तो इंटीग्रेशन यानी समीशन, इट मीन्स एरिया स्टार्टिंग विथ 2 एंड विथ 4, वाई डी एक्स. तो हेयर यू फाइंड आउट 2 to 4 वाई डी एक्स. वाई मीन्स एक्स क्यूब डी एक्स. सो वी फाइंड आउट इंटीग्रेशन x4 by 4 2 to 4. So this is here 1 by 4 4 raised to power 4 minus 2 raised to power 4. So it is here 256 minus 16, 240 by 4, 60 square units. This is the bounded area, 60 square units. You find out area bounded by the curve, this one with respect to x axis with the lines x equal to 2 and 4. Okay students, now the next problem is here. Next question, suppose you are going to find out in the next sum, you find out the area bounded by the curve y is equal to x square minus 4, y is equal to x square minus 4, x axis and the lines x equal to 0 and x equal to 3. This is the problem. So first of all, you find out the rough sketch of this question, this curve. Y is equal to x square minus 4 from 0 to 3. Find out the table here. X 0, 1, 2, 3. And y, this is minus 4, minus 3, 0,
5. Now when we draw the rough sketch, what do you find out? You have 0, 1 to 3 and y is -1, -2, 0 से -4, 0 to -4, देखिए -4, 1 to -3, 2 to 0, 3 to 5. तो आप देखेंगे इस टाइप की कर्व हो गई हमारी है, राइट ना, दिस टाइप, ठीक है, दिस टाइप. ये रीजन देखिए नेगेटिव साइड में चला गया और ये पॉजिटिव. 0 से 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस ये नेगेटिव डायरेक्शन में चला गया और 2 से 3 पॉजिटिव डायरेक्शन में. तो जो नेगेटिव डायरेक्शन में, क्योंकि एरिया हमें ऑलवेज पॉजिटिव होगा, डायरेक्शंस नेगेटिव हो सकती हैं, तो उसके लिए आपको माइनस यूज करना होगा. सो व्हाट वी हैव, रिक्वायर्ड एरिया 0 से 2 माइनस वाई डी एक्स, माइनस यूज करना होगा क्योंकि आपको इसको पॉजिटिव बनाना है, ये नेगेटिव साइड में, प्लस 2 से 3 वाई डी एक्स. ठीक है, तो यहां से देखिए 0 से 2 माइनस कर दीजिए डी एक्स, प्लस 2 से 3 x² -4 dx. ये आपका हो गया -x³ 3 प्लस 4x, 0 से 2 x³ 3 -4x 2 से 3. लिमिट सब्स्टिट्यूट कीजिए, व्हाट वी हैव, -8/3 प्लस 8 -0. यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कीजिए 27/3 -12 -8/3 प्लस 8. यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम 2 ना, 8/3 और ये आपका -8, दिस वन, क्लोज कर दीजिए ब्रैकेट. तो हमारा रिजल्ट आता है यहाँ से 3/24, 0 को नेगलेक्ट कर दीजिए, 9 -3 आ गया उधर से, प्लस -3 माइनस दिस वन 24. ओके, सो व्हाट वी हैव, 16/3 -3 प्लस 16/3, 16 -9 प्लस 16, 32 -9/3, यानी कि 23/3 स्क्वायर यूनिट. दिस इज द सम. You find out the area bounded by the curve y is equal to x² -4, x-axis and the lines. Okay students, so this time you can solve the problems. अब next हम देखिए आप, using integration find the area of the region bounded by the lines. Find the area bounded by the lines bounded by the lines that is given 2y is equals to -x plus 8. okay, -x plus 8, x-axis and the x-axis and the lines
x equal to 2 and x equal to 4. Okay students, same thing. First of all you draw the rough sketch. Rough sketch find करें. 2y is equal to minus x plus 8. Either we can say y is equal to minus x plus 8 by 2. You draw the rough sketch. देखिए 2 to 4, 2 3 4 2. When you put 2 here you get 3. आपने यहाँ 3 सब्स्टिट्यूट करना है इसके बाद में, तो 5 by 2 आएगा. 4 सब्स्टिट्यूट कीजिए 2. रफ स्केच ड्रॉ करें. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस. तो ये आप देख पा रहे हैं 2 3 एंड 4 एक्स. वाई जो देख रहे हैं वो क्या है 2 3. आप देख पा रहे हैं 2 से देखें तो क्या रिजल्ट आ रहा है 3. 3 पर आप देख रहे हैं 2.5. 4 पर देखिए 2. नियरली यहाँ पर आ जाएगा. एक स्ट्रेट लाइन बनेगी आपकी, है ना, स्ट्रेट लाइन. दिस इज स्ट्रेट लाइन. यहाँ से देखिए 2 से 4. ये आपका रफ स्केच हो गया. ओके, रफ स्केच. आपको 2 से 4 फाइंड आउट करना है. रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू 2 to 4 y dx. y आप देख पा रहे हैं माइनस एक्स प्लस 8 by 2 dx. तो ये देखिए 1 by 2 माइनस एक्स प्लस 8 dx. क्या रिजल्ट आने वाला, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 8x 2 to 4. लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. 1 by 2 अपर लिमिट पुट करिए. लोअर लिमिट 1 by 2 32 14. ठीक है. तो आपका रिजल्ट जो बना 1 by 2, यहां से कितना आएगा 24 माइनस 14, यानी कि रिजल्ट जो आया आपका 10, यानी कि 5 स्क्वायर यूनिट्स. यू गेट रिजल्ट इज 5 स्क्वायर यूनिट. ठीक है. और दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम. ओके स्टूडेंट्स, next sum, find out the area. Next question is here. Yes, find the area of the region of the curve y is equal to cos x. Find the area of the region y is equal to cos x in between y is equal to cos x between x equal to 0 and x equal to 2 pi. 0 से 2 pi रफ स्केच बनाएं. सबसे पहले आप इसका रफ स्केच 0 से 2 pi y इक्वल टू cos x. देखिए ना y इक्वल टू cos x. cos x का ग्राफ बनाइए पहले आप. cos x का ग्राफ 0 से 2 pi, 0 से 360. ओके. आप सभी जानते हैं कि cos लाइज बिटवीन +1 एंड -1. -1 या 0. यहाँ से देखिए आप, हमने ग्राफ बना रहे हैं 90 पाई 3 pi by 2 अप टू 2 pi. cos 0 1 होता है 1. 90 पर 0, पाई पर इसकी वैल्यू -1 होगी,
3π/2 पर अगेन 0 और 2π पर ये 1 होगा। तो इस टाइप से ये डायग्राम बनेगा आपका, ये कर्व दिस वन अप टू 2π। तो ये रीजन, दिस रीजन और दिस वन, ये देख रहे हैं आप, ये आप देखें अबव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, इसके साथ में आपको माइनस लेना होगा। तो रिक्वायर्ड रीजन क्या होगा, रिक्वायर्ड रीजन 0 से π/2 y dx प्लस π/2 से 3π/2 माइनस y dx आएगा यहाँ पर, और 3π/2 से 2π y dx पुट कर दें। cos x dx, cos x dx, ठीक है। नाउ यू फाइंड आउट इंटीग्रेशन, इसका होगा sin x 0 से π/2, ये sin x π/2 3π/2, यहां से sin x 2π। अब सब्स्टिट्यूट कर दे लिमिट sin π/2 माइनस sin 0, ठीक है, माइनस sin 3π/2 माइनस sin π/2। देखिए नेगेटिव है बाहर ना, ये माइनस को बाहर ही कर दीजिए आप, और ये sin π/2 sin 2π sin 3π/2, ठीक है। अब वैल्यू फाइंड करें। अब जानते हैं sin 90 कितना होता है 1 और sin 0 0, sin 3π/2 sin 270 थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया राइट, -1 आएगा, और sin 90 ये 1 होता है, sin 2π यानी 360 पे 0, ये -1 होगा, वो +1 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 1, ये -2 यानी +2 +1, यानी कि रिजल्ट क्या है 4 स्क्वायर। दिस वन इज 4 स्क्वायर यूनिट। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू cos x बिटवीन x इक्वल टू 0 to 2π। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम, you see the next sum. The next question is here. Next problem है, you find out the area of, draw the rough sketch of the curve, draw the rough sketch of the curve y is equals to 9 minus x square under root, right ना, 9 minus x square under root, x is greater than equal to 0, and the area bounded by the curve, area bounded by the curve with coordinate axis। दिस द सम। इसमें देखिए स्टूडेंट्स, जो कर्व आप देख रहे हैं, दिस इज हियर y इक्वल टू 9 माइनस x स्क्वायर रूट। अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं बोथ साइड, स्क्वायरिंग, तो ये कर्व आपका ये बनेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 9। एज यू कंपेयर इट विद x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर टू a स्क्वायर, जो कि आपकी जनरल इक्वेशन होती है सर्कल की, विद द सेंटर है 0 0, रेडियस विद a, या r ले सकते हैं आप। तो कंपेयर इट विद x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। r स्क्वायर यानी r कितना हो गया आपका, r यानी रेडियस 3। तो इसका रफ स्केच ड्रॉ करें।
रफ स्केच, रफ स्केच जो करें, दिस वन, ये सर्कल, रेडियस 3, ये रीजन आपको फाइंड करना है। जैसे उसने कहा ना x ग्रेटर देन 0 विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी x एक्सिस y एक्सिस, ये आपको फाइंड आउट करना है, यानी 0 से 3। रिक्वायर्ड रीजन क्या हुआ? रिक्वायर्ड रीजन 0 से 3 y dx, y dx, तो यहां से आएगा 0 से 3 9 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला हमने आपको पहले नोट कराया था, यूजिंग a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट dx क्या होता है? x/2 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a, ये आपको यूज करना है। ये आप यूज करें। अगर ये इनडेफिनेट मैथ प्लस कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ पर यूज नहीं हुआ क्योंकि लिमिट गिवन है। तो आप यहाँ पर देखें आप, तो ये आपका है 0 से 3, ये यूज हम कर रहे हैं, ये फॉर्मूला 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx। यहाँ पे देखिए x/2 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a, 0 से 3 पुट करिए, 3 सब्स्टिट्यूट करें पहले आप, ये क्या बनने वाला है? 0 हो जाएगा 3 पुट करने पर, ये आपका साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, माइनस ये 0 और ये भी 0, तो 9/2 और ये होता है π/2, ठीक है। अब ये क्या होगा आपको 9π/4 स्क्वायर यूनिट, 9π/4 स्क्वायर यूनिट्स, राइट स्टूडेंट्स। So these are some problems depending on application of integrals. Okay, in the next lecture we also solve some more problems on this same topic. Okay, thanks.